معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے کالی آتما ایپیسوڈ نمبر 3۔ تم نے دیکھا کہ میں نے یہ 2 منزلہ کشتی اس لیے بنائی تھی۔ میرا علم یہ کہتا تھا کہ ہمیں ایک دن یہاں سے فرار ہونا پڑے گا اور ہمیں سامان کی ضرورت پیش آئے گی۔ بے شک میرے بیٹے لاروا نے بڑی دور اندیشی سے کام لیا اور یہ انسانی لاشیں یہاں محفوظ کر لیں۔ پتہ نہیں باقی لاشیں کس کی ہیں، لیکن خیر کچھ بھی ہو، یہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ خوراک ثابت ہوں گی۔ کشتی کا سفر دن اور رات جاری رہا۔ تیز رفتار دریا بڑی روانی کے ساتھ بہہ رہا تھا اور کشتی اس پر چلی جا رہی تھی۔ ابھی تک انہوں نے نہ تو دریا میں چٹانیں ملی تھی، نہ کوئی ایسا سنگین حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا جو انہیں پریشانی کا شکار کر دے۔ وہ ایک نامعلوم منزل کی جانب رواں دواں تھے اور وقت کے دھارے اس طرح بہہ رہے تھے۔ پیچھے ان کے قبیلوں میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ انتہائی دکھ بھری کہانی تھی۔ نہ جانے کیسی کیسی داستانیں وہاں جنم لے رہی تھیں، لیکن ایسی داستانیں تو کرۂ ارض کے چپے چپے میں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی شکل میں، کہیں کسی شکل میں۔ اوگلوس اور اس کے خاندان کا یہ دریائی سفر جاری رہا، یہاں تک کہ مناظر تبدیل ہونے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو دریا کے دھاروں کے سپرد کر دیا تھا، اور ایک بار بھی اوگلوس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسے کہاں جانا ہے۔ آگے چل کر دریا کی روانی کسی قدر سست ہو گئی تھی، تب پہلی بار اوگلوس نے کئی چاند اور کئی سورج گزرنے کے بعد کہا، اب میرا علم کہتا ہے کہ ہماری منزل آنے والی ہے۔ ہم کہاں پہنچیں گے مقدس باپ؟ ایک ایسی انوکھی اور اجنبی دنیا میں جس کا تم نے کبھی خوابوں میں بھی تصور نہ کیا ہوگا۔ اوگلوس نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا، ہماری دنیا کے علاوہ اور کوئی دنیا بھی ہے مقدس باپ؟ اوگلوس کی بیٹی نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اوگلوس نے پیار سے کہا۔ نہیں مقدس باپ، میں کچھ نہیں جانتی۔ اور میرا تم؟ اوگلوس نے دوسری بیٹی سے پوچھا۔ میں بھی نہیں جانتی مقدس باپ۔ کوئی اور لڑکی؟ مقدس باپ، میں ایک بات جانتی ہوں۔ تیسری بیٹی ایلا نے اپنے باپ کا چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ اگر ہماری دنیا کے سوا کوئی دنیا ہے بھی تو وہ ہماری دنیا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوگی۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہتی ہوں۔ میں تمہاری بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ جس مٹی سے جاندار تخلیق ہوتے ہیں وہ ماں کا وجود رکھتی ہے، اور ماں سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ میں ایک بات پوچھوں مقدس باپ؟ ضرور۔ آپ نے اپنی دنیا کیوں چھوڑی؟ اپنی دنیا؟ ہاں، وہ خوبصورت پہاڑ، وہ حسین وادیاں، وہ سفید جھرنے، انہیں آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ وہ ہمارے لیے اجنبی ہو گئے تھے۔ اجنبی؟ ہاں۔ وہ کیسے مقدس باپ؟ وہاں غیروں کا قبضہ ہو گیا تھا، وہ غیر ہمارے دشمن تھے، لیکن ہم نے تو کوئی جنگ نہیں لڑی، پھر بھی ہم سارگانا کے باشندے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے مقدس باپ؟ ہاں بولو۔ آپ تو جادوگر تھے، پوگامی نے کہا۔ ہاں میرے بیٹے، لیکن تم بھول رہے ہو کہ دشمن کے قبیلے میں بھی جادوگر موجود تھے، اور پھر میں مجبور تھا۔ آپ کی کیا مجبوری تھی مقدس باپ؟ ایک مجبوری نہیں تھی میری، پوری 11 مجبوریاں تھیں، پوری 11۔ تم 10 کہہ لو، اوگلوس مسکرا کر بولا۔ ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ 6 بیٹیاں، 3 بیٹے اور 1 بیوی، کتنے ہوئے؟ 10۔ پوگامی نے مسکرا کر کہا۔ ہوئی نا میری 10 مجبوریاں؟ ہم بھی تمہارے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے مقدس باپ، شوگن نے کہا۔ نہیں میرے بچوں، مقابلہ تلواروں، بھالوں اور کلہاڑیوں سے نہیں ہوتا، جادوگروں سے مقابلہ تھا، اور جادوگروں سے جادو کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آپ نے ہمیں جادو کیوں نہیں سکھایا مقدس باپ؟ اس کی کچھ وجہ تھی۔ کیا؟ افسوس، یہ تمہیں نہیں بتایا جا سکتا۔ آپ ہمیں نئی دنیا کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ہاں تو بتائیے۔ وہ دنیا بڑی انوکھی ہوگی، میں نے صرف ایک بار اپنے علم کی روشنی میں اسے دیکھا ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں پہلے خود بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا وہاں خطرناک جادوگر نہیں رہتے ہیں؟ کیونکہ آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ میں بہت فکر مند ہوں۔ کیوں؟
कौन जाने उनका जादू कितना सख्त होगा। और वो देखो, वो उधर उधर, ओगलोस ने मुस्तरब लहजे में कहा, और सब उसके इशारे पर देखने लगे। ओगलोस और उसके साथ मौजूद उसके बच्चों ने ओगलोस के इशारे की तरफ देखा और शशदर रह गए। जो कुछ देखा था वो समझ में ना आने वाला था। काफ़ी फासले पर दरख्तों के झुंड खड़े थे। ये दरख्त खासे ऊंचे थे, लेकिन उनके अकब में उन्हें जो चीज़ नज़र आ रही थी वो किसी तौर समझने वाली नहीं थी। बस ऊंचे ऊंचे खूबसूरत पहाड़ जो किसी तौर पहाड़ लगते ही नहीं थे। एक अजीबोगरीब दुनिया वहाँ आबाद थी। दरख्तों के झुंड के दरमियान एक ऐसी ही चीज़ नज़र आ रही थी, सफ़ेद रंग के पहाड़ जैसी चीज़, लेकिन ये पहाड़ कुदरती नहीं थे। साफ ज़ाहिर होता था कि ये इंसानी हाथों का बनाया हुआ है। कश्ती की रफ्तार सुस्त हो गई और ग्लोस ने कहा, शायद हम उस अनोखी दुनिया में पहुंच गए हैं जिसके बारे में मेरा इल्म मुझे बताता था। आओ मेरे साथ दो। कश्ती का रुख तब्दील करते हैं और उसके तीनों बेटे भी उसके साथ चप्पू चलाने लगे और कुछ ही लम्हों में कश्ती किनारे पर जा लगी। तब वो ज़मीन पर उतर आए। ओगलोस ने कहा कि कश्ती को खींचकर उन दरख्तों के दरमियान छुपा दो। कौन जाने हमें कब उसकी ज़रूरत पेश आ जाए और यहाँ से कहीं आगे का सफ़र करना पड़े। उसके बेटे ने उसकी हिदायत पर अमल किया। साथ लाए हुए सामान को उन्होंने अपने साथ ले लिया और फिर वो ओगलोस की रहनुमाई में उस सफ़ेद पहाड़ की जानब चलने लगे, जो बड़ा वसीओ अरीज़ था लेकिन इंतहाई हैरान कुन। तब ओगलोस दरख्तों के एक झुंड के पास रुका और उसने कहा, तुम लोग खामोशी से यहीं क़याम करो और देखो, चारों तरफ निगाह रखना, कोई भी चीज़ इधर आ सकती है। हम तो अजनबी दुनिया से नावाकिफ़ हैं, समझ रहे हो ना। हाँ मुक़द्दस बाप, हम समझ रहे हैं, मगर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा नहीं रहा, मैं अपने इल्म से ये मालूम करता हूँ कि हम कहाँ हैं और ये कौन सी जगह है। ओगलोस की बेटियाँ उसके गिर्द जमा हो गईं, जबकि बेटे अपने नोकीले भाले जो लकड़ी से बने हुए थे लेकर चारों तरफ निगाहें रखने लगे कि कहीं कोई ज़ीरू नज़र आए तो उससे अपनी हिफाजत कर सकें। ओगलोस ने ज़मीन पर एक जगह बैठकर अपने लंबे नाखनों से ज़मीन पर निशानात बनाने शुरू कर दिए। उसने कुछ दायरे बनाए और फिर एक वसी दायरा, और उसके हाथ फ़िज़ा में गर्दश करने लगे। थोड़ी देर तक तो कुछ ना हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के उस टुकड़े का रंग बदलने लगा जहां ओगलोस ने दायरे बनाए थे, और उन दायरों में पानी खौलने लगा। यूँ लग रहा था कि जैसे समुंदर उस दायरे में सिमट आया हो। हल्के हल्के बुखारात उठ रहे थे और वो मुख्तलिफ रंग तब्दील करते जा रहे थे। ओगलोस उन पर निगाहें जमाए होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ा रहा था। ये अमल बहुत देर तक जारी रहा। ओगलोस की बेटियां अपने बाप के चेहरे को देख रही थी। तब ओगलोस की आवाज़ उभरी, आह वही वही, बिल्कुल वही। ये कहकर उसने अपने दोनों हाथ उस दायरे पर घुमाए और दायरा अपनी जगह से मादूम हो गया। ओगलोस की बेटियां बाप की शक्ल देख रही थी, जिस पर खुशी के तासरात नज़र आ रहे थे। मेरे प्यारी बेटियों, हम नई दुनिया में हैं। ये दुनिया हमारे लिए बड़ी अच्छी साबित होगी, क्या समझी तुम? लड़कियां खुशी से मुस्कुराने लगीं। ओगलोस ने कहा, और मैंने अपने इल्म से मालूम कर लिया है कि ये सब इंसानों की आबादियां हैं। वो जो ऊंचे ऊंचे नीचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं वो पहाड़ नहीं हैं, बल्कि पत्थर और मिट्टी से बनाए गए घर हैं जो बहुत बुलंदियों तक चले गए हैं। नई दुनिया के अजनबी लोग हमसे ज़्यादा बड़े जादूगर हैं, और ये जो चूने का सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहा है ये पहाड़ नहीं, कोई घर है। आओ हम इस घर को देखते हैं। ओगलोस ने अपने पूरे ख़ानदान को समेटा और मोहतात कदम उठाता हुआ दरख्तों की आड़ लेता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा जहां एक अजीम शान हवेली नज़र आ रही थी। ये एक जदीद तरीन शहर का नवाही इलाका था। शहरी आबादी यहाँ से काफ़ी फासले पर थी। ये जगह चौंका थोड़ी सी नशीब में थी, इसलिए यहाँ से बुलंद इलाकों की इमारतें नज़र आ जाती थीं। दरिया के किनारे फैला हुआ ये मज़ाफ़ाती इलाका इंतहाई खूबसूरत था, बल्कि किसी ज़माने में यही शहर कदीम शहर था और दरिया के किनारे फैला हुआ था। अब बड़ी आबादी सिमट कर दूर चली गई थी, लेकिन दरिया के किनारे इन कदीम हवेलियों के आसार मौजूद थे जो पुराने दौर की बनी हुई थीं। ये सफ़ेद हवेली जो नज़र आ रही थी ये भी पुराने दौर की एक हवेली थी।
ओगलूस और उसका खानदान मुहतात अंदाज में आगे बढ़ता रहा और फिर हवेली के बड़े दरवाजे के ऐन सामने वो लोग रुक गए। ओगलूस ने कहा, हमें नई दुनिया का ये पहला घर नज़र आया है। हम पहले इसका जायज़ा क्यों न लें और इससे हमें दुनिया में रहने वालों के बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मुकद्दस बाप, क्या नई दुनिया के रहने वाले हमें अपने दरमियान कबूल कर लेंगे? पता नहीं वो किस तरह के लोग हों, कैसे मिजाज के मालिक हों और उनके बोलने का अंदाज़ कैसा हो, उनके रहने का अंदाज़ कैसा हो। जबकि उनके ये घर इतने खूबसूरत बने हुए हैं, उससे अंदाज़ा होता है कि वो बहुत बड़े जादूगर हैं, वरना ऐसे घर बनाना आसान काम तो नहीं होता। सुनो, मैं अपने इल्म से तुम लोगों को एक अहम चीज़ देना चाहता हूँ। वो ये है कि उन लोगों के बोलने और रहने का अंदाज़ जैसा भी हो, तुम्हें उसके बारे में इल्म हो जाए। तुम उन्हीं के अंदाज में बोल सको और उन्हीं के अंदाज में रह सको और उन्हीं के अंदाज में सोच सको। क्या तुम्हारा इल्म हमें उनकी बात समझा सकता है मुकद्दस बाप? हाँ, मैं भी अपने कबीले का बड़ा जादूगर हूँ, कोई अहमक और बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो फिर हमें अपने इल्म से बहरावर कर। ओगलूस ने होंठों ही होंठों में कुछ बड़बड़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद वो अपने जादू मंत्र के अंदाज को उनके कानों में फूंकने लगा और उन सब के साथ ये अमल करने के बाद उसने आंखें बंद करके आसमान की तरफ निगाहें उठाईं और देर तक उसी तरह गर्दन उठाए रहा और फिर गर्दन हिलाकर बोला, आओ मेरे साथ आओ। और सब के सब उस हवेली की जानब चल पड़े। हवेली के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर वो रुके। सब की निगाहें उस अजीम शान घर को देख रही थी जिसका बस तस्वर ही किया जा सकता था। दफतनी घर का दरवाज़ा खुला और एक लंबे चौड़े शख्स ने गर्दन निकाल कर बाहर झांका। वो बहुत ताकतवर और तवाना था और उसके हाथ में उसका आग उगलने वाला भाला दबा हुआ था। वो उन लोगों को हैरत और दिलचस्पी से देखने लगा। फिर उसकी आवाज़ उभरी, कौन हो तुम? ओगलूस और उसके ख़ानदान ने उस शख्स की आवाज़ सुनकर उसे समझ भी लिया, लेकिन ओगलूस ये गौर नहीं कर पाया था कि उसे अपने बारे में क्या बताना चाहिए। तब उस शख्स ने उनमें से एक को घूरते हुए कहा, ओ बंजारे हो। ओगलूस ने सोचा कि उसने उन्हें बंजारा कहा है, हो सकता है कि बंजारा कोई ऐसी ही चीज़ हो। उसने गर्दन हिलाई और बोला, हाँ हम बंजारे हैं। कहाँ खैमे लगाए हैं तुमने? हमने कहीं खैमे नहीं लगाए, बस इधर दरिया के रास्ते से आए तो ये घर देखा। कितना खूबसूरत घर है ये खूबसूरत घर है। अगर मैं 30 साल से यहाँ नौकरी ना कर रहा होता तो ऐसे किसी घर पर थूकना भी पसंद ना करता। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? क्या हमें अंदर आने दोगे? ओगलूस ने कहा, क्यों, खैरियत भाई। ये वीरान हवेली है, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं होता। देखो ज़रा अंदर झांक कर तो देखो, कोई आता ही नहीं यहाँ और उसके मालिक मुल्क से बाहर हैं। क्या करोगे यहाँ आकर? हम ये घर देखना चाहते हैं। ठीक है, आ जाओ। और मैंने कौन सा यहाँ अपना ख़ानदान आबाद करना है? उस शख्स ने कहा। फिर बोला, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, नौकरी करता हूँ यहाँ। ओगलूस और उसके ख़ानदान वाले अंदर दाखिल हो गए। तब उन्होंने उस बहुत बड़े घर को देखा जिसके अहाते में लातादाद दरख्त खड़े हुए थे। उन दरख्तों के सूखे पत्ते टूट टूट कर बिखरे हुए थे। सामने वाले हिस्से में एक रोशन रवश अंदर तक चली गई थी। चौकीदार ने कहा, आओ तुम्हें ये जगह अंदर से दिखाऊं। ओगलूस ने गर्दन हिला दी और वो सब लोग हैरत और दिलचस्पी से इतने बड़े झोंपड़े को देखते हुए उस रवश पर चल पड़े। सब एक ही बात सोच रहे थे, नई दुनिया के अजनबी इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं। उन सीढ़ियों से गुजरने के बाद बड़ा दरवाज़ा था। हवेली बेशक बहुत कदीम थी, लेकिन इंतहाई मजबूत और शानदार बनी हुई थी। चौकीदार ने हवेली का दरवाज़ा खोला और वो लोग हैरत से मुंह फाड़े अंदर झांकते रह गए। इतने खूबसूरत झोंपड़ा उन लोगों ने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। हवेली में बेशुमार कमरे थे, गुलाम गर्दिशें थीं, दरवाजे थे, छतों पर फानूस लटके हुए थे
और ना जाने क्या क्या था वहाँ। ओगलोस और उसकी बेटियों ने ये सब कुछ देखा और उनके दिल में आरज़ू पैदा हो गई कि यहाँ रुका जाए। तब ओगलोस ने अपने दिल की बात चौकीदार से कह दी। उसने कहा, हम तो पता नहीं कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, कैसी खूबसूरत जगह है, क्या तुम हमारे दिल की एक ख्वाहिश पूरी कर दोगे? हाँ बोलो, क्या हम कुछ वक्त यहाँ रह सकते हैं? चौकीदार कुछ सोचता रहा और फिर आंखें बींच कर गर्दन हिलाकर बोला, देखो तुम यहाँ बेशक रह सकते हो, लेकिन यहाँ चोरी मत करना, कोई चीज़ लेकर यहाँ से मत भागना। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, पता नहीं कब से हवेली की हिफाजत कर रहा हूँ, तनख्वाह मिलती है। मुझे वकील साहब कहीं न कहीं कि चोरी मैंने की है, मेरी नेक नामी खराब मत कर देना। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो और हम तो यहाँ सिर्फ अपना शौक़ पूरा करेंगे और उसके बाद यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है भाई, शौक़ पूरा कर लो, चौकीदार ने जवाब दिया और फिर हंसता हुआ बाहर निकल गया। ओगलोस और उसके बेटे और बीवी परेशान निगाहों से चारों तरफ देखने लगे और उसके बाद उन्होंने उस हवेली का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। बड़े बड़े वसी कमरे और उनके दरवाज़ों पर लटके हुए कीमती पर्दे और ना जाने क्या क्या, और उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वो इन चीज़ों को छूते हुए डर रहे थे कि कहीं वो ख़राब ना हो जाएं। बहुत देर तक वो हवेली का जायज़ा लेते रहे और फिर उन्होंने एक ऐसा कमरा अपने लिए मुंतखब कर लिया जो खाली था और उसमें फर्नीचर वगैरह नहीं था, अलबत्ता कालीन बिछा हुआ था। ओगलोस की बेवी ने हैरत से कहा, ये कौन सी जानवर की खाल है? हम अपने झोंपड़े में जानवरों की खालें बिछाया करते थे, लेकिन इतना बड़ा जानवर कौन सा हो सकता है? देखो, इन खालों में कोई जोड़ भी नहीं है। अजनबी दुनिया के अजनबी लोगों ने अपने जादू से न जाने क्या क्या कुछ बना रखा है, और अभी तो यहाँ थोड़े से सब्र से काम लेना होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। दौराने सफ़र खाने पीने के लिए जो कुछ ये लेकर आए थे उसे चट कर चुके थे। मुर्दा इंसानों के ढांचे उन्होंने दरिया में फेंक दिए थे और अब उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वक्त गुजरता रहा। ओगलोस की बेटियां सारे कमरों में फुदकती फिर रही थीं, एक एक चीज़ को देख रही थी। खूबसूरत और खुशनुमा पर्दे उनके लिए सबसे ज़्यादा कशिश का बायस थे। वो उन्हें अपने बदन पर सजाती, हंसती और एक दूसरे से छेड़खानियाँ करती, एक दूसरी से कहती, अब अजनबी दुनिया तो बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी उतने ही हसीन होंगे। ओगलोस अपनी बेटियों से कह रहा था, ये बताओ खाने पीने का क्या इंतज़ाम किया जाए? वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि अजनबी दुनिया बड़ी खौफनाक है। देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हमें यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या करना होगा। मुक़द्दस बाप, ज़ाहिर है कि हमें यहीं के मुताबिक अपने आप को ढालना होगा। हाँ, ये देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं सोच रहा हूँ। भूख का क्या इंतज़ाम हो? ओगलोस और उसके साथी सोच में डूब गए। फिर अचानक ओगलोस के एक बेटे ने, जिसका नाम ओगोस था, कहा, वो शख्स जो अपने आप को चौकीदार बताता है, हाँ, नई दुनिया का अजनबी, और यहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या उससे अच्छी खुराक हमारे लिए और कोई हो सकती है? ओगलोस को बेटे को देखने लगा और फिर रफ्ता रफ्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट फैलने लगी। मेरा ख्याल है तुम ठीक कहते हो, वाकई उसमें इतना गोश्त मौजूद है कि हम सब आराम से शिकम सीर का तैयारी कर सकें। बस तो फिर ठीक है, और उससे हमें 2 फ़ायदे होंगे। तीसरा बेटा लार्वा बोला। वो क्या? ओगलोस ने अपने उस ज़हीन बेटे को देखते हुए कहा, जो हमेशा दूर की कौड़ी लाता था। पहली बात तो यह है कि हमें इब्तदाई खुराक मिल जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे और सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके बाद इस हवेली में और कोई नहीं होगा और हम इस घर में आराम से काफ़ी वक्त गुजार सकेंगे। यहाँ आसपास और कोई घर भी नहीं नज़र आता और जिसके बारे में ये सोचा जाए कि वो हमारे लिए गलत हो सकता है। ठीक कहते हो, वाकई ये दोनों फ़ायदे तो बेमिसाल हैं। ओगलोस ने अपने बेटे की बात की तस्दीक कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि अब हम क्या करें? ऐसा करते हैं कि उसे यहाँ बुलाते हैं और उसके बाद उसके सर में मोटा डंडा मारकर उसे ख़त्म कर देते हैं।
बस तो फिर उसके बाद क्या रह जाएगा। हाँ ठीक कहते हो, ओगलोस ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर तशवीश के आसार थे। फिर उसने गर्दन हिलाई और बोला, जाओ ओगास, तुम उसे बुला कर लाओ। ओगास ने गर्दन हिलाई और उन्होंने एक ऐसी जगह मुंतखब कर ली जहाँ चौकीदार को ले जाकर ज़िबा किया जा सकता था, और इसे कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। ये चौकीदार यहाँ बरसों से ज़िंदगी गुजार रहा था, यहीं जवान हुआ था, यहीं पला बड़ा था। सारी दुनिया से कट कर उसने इसी जगह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया था और उस जगह से सब कुछ हासिल किया था। ना बीवी थी ना बच्चे, गुंजाइश ही नहीं थी उसकी, बस अकेला था वो। और इस हवेली के दरो दीवार थे जिनसे उसे मोहब्बत थी। उस हवेली के मालकान के बारे में कोई मालूमात नहीं हासिल थी। सदियों से ये हवेली किसी एक ख़ानदान की मलकियत चली आ रही थी और नए ख़ानदान वाले गैर मुल्क में मुकीम थे। बस उस ख़ानदान की जायदाद की देखभाल करने के लिए एक वकील साहब थे, जो इस हवेली ही की नहीं बल्कि इस ख़ानदान की बाकी जायदाद की भी, जो शहर में फैली हुई थी, देखभाल किया करते थे। उन्हीं से उस चौकीदार को तनख्वाह मिलती थी और चौकीदार महीने की 1 तारीख को शहर जाकर अपनी तनख्वाह वसूल करता और महीने भर का राशन लेकर हवेली में वापस आ जाता था। इंसानों से काफ़ी फासला था उसका, लेकिन बहरहाल वो इंसान ही था। कभी कभी कुछ भूले भटके लोग हवेली की तरफ आ भी जाते और उनमें दरिया के किनारे पिकनिक मनाने वाले या फिर कुछ ऐसे लोग जो इन रास्तों से गुजरते थे और किसी मुश्किल का शिकार हो जाते थे, वो आ जाते। चौकीदार उन्हें हवेली में आने से मना नहीं करता था। हवेली की सफाई कोई ख़ास ज़रूरत तो पड़ती नहीं थी, बस अंदर की सफाई चौकीदार खुद ही कर लिया करता था। बस इसी तरह उस बेचारे की ज़िंदगी गुजर रही थी। ओगास उसकी तलाश में राहदारी से बाहर निकलने ही वाला था कि चौकीदार खुद उनकी खबरगिरी के लिए आ गया। तुम लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, मैं भला तुम्हारी इस सिलसिले में क्या मदद कर सकता हूँ। तुम में से एक आदमी शहर चला जाए और खाने पीने की चीज़ें ले आए, मैं उन्हें तैयार कर दूंगा, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकता। मैं खुद भी गरीब आदमी हूँ। उधर मुकद्दस बाप तुम्हें बुलाता है, ओगास ने कहा। मुकद्दस बाप तो सारे ही मुकद्दस हुआ करते हैं, अपनी औलाद के रखवाले तो होते हैं। क्या बात है, चलो, चौकीदार ने कहा और उसके साथ चल पड़ा। ओगलोस ने जो जगह मुंतखब की थी वो हवेली की बाएं सिमत एक राहदारी थी जो अच्छी खासी वसी थी। राहदारी में वो अपने बेटे ओगास का इंतज़ार कर रहा था और उसके साथ उसके दोनों बेटे भी तैयारियां किए हुए थे। हाँ बोलो, क्या बात है, क्यों बुलाया है तुमने मुझे? मैं अभी तुम्हारे इस साथी से कह रहा था कि तुम लोग अपने साथ खाने पीने की चीज़ें नहीं लाए। देखो भाई, बात असल में ये है कि मैं महीने में सिर्फ 1 बार शहर जाता हूँ, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें ले आता हूँ और बस वो महीना भर चलती हैं। आज 27 तारीख है, महीने के 3 दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सकता। अपनी खुराक का खुद बंदोबस्त करो। ओगलोस के चेहरे पर एक बेहानक मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हमने यही किया है। क्या मतलब? अपनी खुराक का हमने खुद बंदोबस्त कर लिया है। वो कैसे? चौकीदार ने हैरत से कहा, और उसी वक्त अचानक यकब से उसके दोनों बेटों ने चौकीदार पर हमला कर दिया। उनमें से एक ने चौकीदार की दोनों टांगें पकड़कर पीछे घसीटी तो वह बेचारा धड़ाम से ऊंधे मुंह जमीन पर गिर गया। उसके सर और नाक पर शदीद चोट आई और सीने पर भी खासी जोरदार ज़रब आई थी और उसके हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरी। उन दोनों ने उसे पलट लिया और चौकीदार ने हैरत से उन्हें देखा और कहा, अरे अरे, खुदा तुम्हें गारत करे, ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हारे साथ भलाई की थी, तुम्हें यहाँ ले आया, लेकिन जंगल के वैशियों ने उसकी बात न सुनी और उन्होंने अपने किए हुए बंदोबस्त के मुताबिक चौकीदार को एक मजबूत सतून से बांध दिया। रस्सियाँ वगैरह उन्हें उस हवेली से मिल गई थी। चौकीदार ने शदीद जद्दोजहद की थी, लेकिन जंगल वाले ज़्यादा ताकतवर थे और उन्होंने चौकीदार के दोनों हाथ बुरी तरह कसकर सतून के पुष्ट पर बांध दिए और इस तरह उसकी टांगें भी बांध दी। चौकीदार ने कहा, देखो, तुमने मुझे ज़ख्मी कर दिया है। ये तो मुझे पता है कि मुझे मेरी नेकी की सज़ा मिल रही है,
मगर भाई मुझे मारने पीटने से क्या फ़ायदा होगा। तुम ऐसा करो कि यहाँ से जो ले जाना चाहते हो ले जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। और वैसे भी यहाँ कोई देखने नहीं आता। ये तो मेरी ईमानदारी है कि मैंने यहाँ से एक कील भी इधर से उधर नहीं होने दी। और तुम्हें जो कुछ चाहिए यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। ठीक है, तुमने मुझे होश दिला दिया है, आइंदा कभी कोई इस हवेली में कदम भी नहीं रख सकेगा। वो सब दबी दबी हंसी हंसने लगे। ना जाने क्यों चौकीदार को उनकी ये हंसी बहुत बेहानक लगी थी। उसने फिर कहा कि तुम तो हंस रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो मुस्तकिल तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम्हें खाने पीने की चीज़ दूँ, मगर अच्छा ही हुआ कि मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अब खोल दो मुझे और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। कह दिया है मैंने कि तुम्हें मना नहीं करूँगा, कुछ भी ले जाओ यहाँ से। वो लोग फिर भी हंसते रहे और फिर उनमें से एक ने अपनी जेब से लंबा चाकू निकाल लिया और चौकीदार ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा। अब उसके चेहरे पर खौफ के आसार दिखाई देने लगे। वो बोला, तुम तो बाकायदा जुर्म पेशा हो, अब क्या मुसीबत पड़ी है तुम पर, ये चाकू क्यों निकाला है? और उसके अल्फाज के जवाब में सारी लड़कियां हंसने लगी। और फिर उनमें से एक ने अपने भाई की तरफ रुक करके कहा, ओगलोस जल्दी करो, इससे बता दो कि यह चाकू क्यों निकाला गया। ओगास चाकू सीधा किए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। चौकीदार की आंखों में खौफ के आसार नमूदार हो गए। वो दहशत भरे लहजे में बोला, अरे अरे क्या करना चाहते हो तुम? आखिर मैं पूछता हूँ कि मुझे जख्मी करके तुम्हें क्या मालूम मिलेगा? मैं तो तुमसे कह चुका हूँ कि जो मर्जी यहाँ से ले जाओ, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरे भाई गलती हो गई और उसके बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। चाहे कोई मर भी रहा हो, मैं अंदर आने की इजाज़त नहीं दूंगा। अचानक ओगास ने बड़ी सफाई के साथ चौकीदार के चौड़े सीने पर उभरे हुए गोश्त के एक हिस्से पर चाकू चलाया और इस तरह से गोश्त का एक टुकड़ा उतार लिया कि चौकीदार खुद भी हैरान रह गया। खून का फवारा बुलंद हुआ और गोश्त का वो टुकड़ा ओगास के हाथ में आ गया। ओगास ने ललचाई हुई निगाहों से चौकीदार के सीने से बहते खून को देखा। चौकीदार की दिलखराश चीखें और उसके बदन की धड़कन बहुत ही भयानक थी। ओगास ने जल्दी जल्दी मुंह खोलकर उसके सीने से बहने वाले खून को अपनी जुबान से चाटना शुरू कर दिया। उधर लड़कियां भी बेकाबू हो गईं। एक अजीब हंगामा हो गया। ओगास ने खून के चंद घूंट भरे, फिर गोश्त के उस वजनी टुकड़े को अपने दोनों हाथों पर रखा और अपने बाप की जानब बढ़ गया। उसने अपने दोनों हाथों से यह टुकड़ा रखकर सबसे पहले बाप को पेश किया तो ओगलोस ने हंसते हुए कहा, मैं तो समझा था कि अजनबी दुनिया में तुम्हारी मोहब्बत कम हो गई या ख़त्म हो गई। हर जगह के कुछ असरात होते हैं, लेकिन पता ये चला कि ऐसी बात नहीं। तुम्हारा शुक्रिया मेरे बेटे। इतने में ओगास का दूसरा भाई शोगन गोश्त का एक और टुकड़ा ले आया और उसने वो अपनी माँ को पेश कर दिया। गोया दोनों ने अपने बुजुर्गों के एहतराम को मद्देनिगाह रखा था और फिर वो खुद उस तरफ वापस मुड़ गया। इस दौरान लड़कियों और उनके छोटे भाई लार्वा ने अपने अपने चाकुओं की मदद से चौकीदार के गोश्त के मुख्तलिफ पार्चे उतारे और फिर उन्हें चबाना शुरू कर दिया। चौकीदार की आवाज़ बैठ चुकी थी। चीख चीख कर उसका गला खुश्क हो गया था और उसकी हलक से दहशत भरी चीखें निकल रही थीं। उसके बाजुओं, पिंडलियों, सीने और कमर के पिछले हिस्से का गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गायब होता जा रहा था और अब वो बोल भी नहीं सकता था। ये वैशी उसे जगह जगह से खा रहे थे। चौकीदार बेचारे को क्या मालूम था कि एक आदमखोर वैशी कबीला हवेली में आ घुसा है और उसके लिए बुरा वक्त शुरू हो गया। थोड़ी देर तक तो वो अजियत बर्दाश्त करता रहा और उसके बाद उसकी रूह परवाज कर गई। जिस्म पर जिस अंदाज में चाकू छुरियां चलाए जा रहे थे वो बड़ा वहशतनाक मंजर था। वो लोग उसे चिट करते रहे और फिर आधे चौकीदार को खाकर उनके पेट भर गए। चौकीदार चौंका तंदुरुस्त तवाना था, इसलिए आधे से ही काम चल गया और अब उन पर नशे की सी कैफियत आ रही थी। ओगलोस ने कहा, फल, सब्जियां, घास फूस, दुनिया की कोई भी चीज़ खा लो और जब तक इंसानी गोश्त ना मिले समझो ज़िंदगी अधूरी और बेमज़ा है। और गोश्त भी क्या उम्दा है, वाह। और वह सब वहीं ज़मीन पर लंबे लेट गए और उनके दिमाग पर नशा तारी होने लगा था।
चौकीदार के जिस्म से अब भी खून के कतरे टपक रहे थे। यह खून उन लोगों के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होता है, लेकिन पेट भरने के बाद सब कुछ बेकार। बाद में ओगलोस ने कहा, यह जगह तो बहुत उम्दा है। मैं समझता हूँ कि यह हमारा बेहतरीन मस्कन बन सकता है। हमें वैसे भी इंसानी आबादियों में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। अपने कबीले में भी हम आम बस्तियों से अलग थलग रहा करते थे। यहाँ का मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। देखेंगे और सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। हाँ मुक़द्दस बाप, यही मुनासिब है। फिर बड़ी एहतियात के साथ चौकीदार का गोश्त इस्तेमाल किया जाने लगा। अंदाज़ा ये हुआ कि अगर एहतियात से इस्तेमाल किया जाए तो 2-3 दिन तक चल सकता है। वो कॉलेज के लड़के लड़कियां थे, ज़िंदगी से भरपूर, जवानी की शौकियों से भरपूर। दरिया किनारे पिकनिक मनाने आए थे। कॉलेज की बस आई थी, उसातिज़ा भी थे और स्टूडेंट्स भी।